नवजोत सिंह सिद्धू की तरह ही उनकी पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर बेबाक हैं, खुल के बोलती हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने फेसबुक स्टेटस पर लिख दिया कि सिद्धू की ईमानदारी उनकी दुश्मन बन गई है और वो अब सियासत से तौबा कर सकते हैं। डॉक्टर सिद्धू इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिद्धू, आपने फेसबुक ही क्यों चुना एक मीडियम अपनी दिल की बात रखने के लिए? काफ़ी हंगामा हुआ पंजाब से लेकर दिल्ली तक। तब मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं भी पॉलिटिक्स में बहुत नई हूँ। सो इट वाज बेसिकली अ वेरी पर्सनल कमेंट बिकॉज फेसबुक के माध्यम से मैं इंटरैक्ट करती हूँ. वी हैव सो मेनी ग्रुप्स लाइक द वॉइस ऑफ अमृतसर ऑन इट. I have the intellectuals with me, you know, so I'm very open to critics about how I work in my constituency. So generally it was coming up on key issues में कि the MP is missing. So you know that's what hurt me. So I just came out with it कि I was waiting for the right time basically. So it was just a personal reaction to the people. I wanted them to know that the MP is not missing just because he wants to do it. But there are certain problems, you know, which he's facing in this thing. So it was an emotional outburst basically. ईमानदार नेता की हार हुई, ये तक लिखना पड़ गया आपको? हार in a way कि of course I felt that if people are not ready to support good people, then somehow it's going to harm the country. You know, like anywhere you see, I've seen it with Anna Hazare. This time he came, there was such a less of a rush. So you know, you should realize that people are doing it for you. Like there are few people who are sacrificing everything for what? If you look into it, for what? So it is because of the society. You know, because we have realized at a certain stage that we are above everything. Now we want to give something back to the society. So people like me, like Navjot Sidhu, are into politics to serve people, not to take anything out of politics. अगर बात करें ये नौबत आखिर आई क्यों? 3 बार के सांसद हैं, एक फेस की तरह लेके आई थी बीजेपी उनको जब उनको इंडक्ट किया था पार्टी में, और आज भी पंजाब से लेके दिल्ली तक वो सिर्फ एकमात्र सांसद हैं बीजेपी से। इस अगर रीजन की बात करें, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, तो आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्या लगता है आपको? इट्स अबाउट बेसिकली पॉलिटिशियंस की मजबूरियाँ मुझे पता चल रही हैं बीइंग इनटू पॉलिटिक्स. You know, just to gain your seat, just to take over you have to compromise on certain issues which people like us are not ready to compromise. So it is just talking about the whole system, wanted the people also to know कि it is a very suffocating system and it won't get cleared unless people also wake up to that. If you want to have something good happening for India, so I think you need also to wake up and use the politicians for good work rather than, you know, for your dirty things. Somehow the good people need to be supported. जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि सिद्धू जी की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो रही है अमृतसर के वोटर्स पे, और उनको बेहतर ऑप्शन मिल गया है एक कमेंट्री का, बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म का, इसलिए वो अब पॉलिटिक्स से निकल करके अपना जो एक अलग दुनिया है कमेंट्री और टेलीविज़न की, उसमें जाना चाहते हैं। इसलिए ये एक प्रीटेक्स्ट यूज़ करें, एक तरीके का ये बहाना है यहाँ से निकलने का पॉलिटिक्स से। सिद्धू एक अकेला एमपी था जो 43 सीट्स पे जीता, in spite of the Manmohan wave that had taken the country as a wave. Still he won. It is not about losing this thing. मतलब people in Amritsar on the streets talk about him, irrespective of the political parties they belong to, because एक सिद्धू का घर है जहाँ पे ये नहीं पूछा जाता आप कौन सी पार्टी को और आपका काम नहीं होगा. You know, so it's not that the people don't love him, and he won at a very odd time, you know. So अगर हम अब की बात करें तो अब तो पूरे chances हैं बीजेपी के to take over. Why this chance when it is a Modi wave? You know, when you could fight it out in the Manmohan Singh wave, why not in the Modi wave? आप दोनों एक 5-स्टार लाइफस्टाइल छोड़ के आए पॉलिटिक्स में। सिद्धू जी क्रिकेटर थे, उसके बाद कमेंट्री में आए। आप खुद एक बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, दोनों लोग पॉलिटिक्स में आए। अब जब डे टू डे चीज़ों से वास्ता पड़ रहा है, पॉलिटिक्स से वास्ता पड़ रहा है, तो लग रहा है बहुत मुश्किल हो गया है, थोड़े गलत फील्ड आ गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, बिकॉज हम दोनों बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और हमारा एक ही मकसद है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें। तो हम सोल मकसद से आए हैं, वो हमारी एम्बिशन है जो हमें काम करने की प्रेरणा देती है, और हम वो करना चाह रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया।
You know, we want to set an example so that good people also come into politics, because certainly पीछे वाले time में हो गया था कि politics is a dirty game, you know. So I'm sick of listening to all this. So I want me and Navjot also, we want to set an example that no, good people also are into politics and who are bothered about giving something back to the society, because हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया. जो जिस तरह से आपने लिखा फेसबुक स्टेटस पे, आप कह रही हैं कि ये एक एक्सप्रेशन था आपका, क्या ये इतना ज़्यादा है, क्या ये दर्द इतना ज़्यादा है कि सिद्धू वाकई सियासत छोड़ देंगे, क्या सियासत से दूर हो जाएंगे? क्योंकि पिछले 3-4 महीने से वो अमृतसर नहीं आए हैं. हाँ, हो सकता है, वो डिसाइड करेंगे, बिकॉज बेसिकली आई वांटेड द पीपल टू नो कि बिग बॉस के बाद का टाइम था जब उन्होंने बिग बॉस के बाद कैरियर में नहीं जाना था. अगर 10 साल वो इंसान अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट छोड़ सकता है, बिग बॉस भी 3rd टाइम गए एंड वो भी घर बन रहा है क्योंकि हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही टेलीविजन है. बट 1.5 साल पहले उन्होंने, और वो रेगुलर विजिट करते थे एंड ही वाज वर्किंग ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स विच द मेंबर पार्लियामेंट इज सपोज टू डू. So after Big Boss, he was not supposed to go into the cricket field. So he went to the cricket field because he went back to the commentary and to his profession because he was not very comfortable here. So that is the point. Rather than we taking it as कि वो अपने प्रोफेशन में वापस चले गए, कॉन्स्टिट्यूंसी को इग्नोर करें, तो ये बात मुझे हजम नहीं हुई. So that was the outburst. I speak the truth, so it was about people knowing the truth, that it was because of this thing that he is away. पार्टी अध्यक्ष ने बात की है उनसे फ़ोन पे, उनको दिल्ली भी बुलाया है, तो क्या वो मिलने जाएंगे, क्या मिलेंगे? हाँ, ऑफ कोर्स मिलेंगे. NDTV इंडिया से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया. थैंक यू.